On protocols? Protocols exist for a reason, Arjun. To protect us, not these patients. बचपन से जानता हूँ तुझे, ये जो तू फेम और कनेक्शन के लिए अच्छाई का ढोंग कर रहा है ना, एक्सेप्ट कर ले, मतलब तो तुझे भी पैसों से ही है। सिर्फ तुझे ही ऐसा क्यों लगता है रवि? डॉक्टर अर्जुन, आज आपको कुछ अहम सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। तो डॉक्टर अर्जुन, आपने उन्हें पूरा सच बताया ही नहीं था। विक्रम, तुम पैसों से सब नहीं खरीद सकते। हक? कैसा है? अरे कौन सा हक? और जब कोई एक डॉक्टर बदलाव लाने की कोशिश करता है तो उन्हें एथिक्स की जंजीरों में बांध दिया जाता है। डॉक्टर अर्जुन, आपको एक आखिरी वार्निंग दी जाती है। पापा! 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 नमस्ते एवरीवन। मेडिसिन इस बारे में कभी था ही नहीं कि आसान क्या है, मेडिसिन इस बारे में है कि सही क्या है। हेलो एवरीवन, आई एम पर्ल पोपट, a third year MBBS student at Medical College Baroda. I am the director and lead of the production, The Inferno. Hello everyone, myself Aditya Singh, second year MBBS student at Medical College Baroda. I am portraying the character of Mr. Vikram Malhotra, administrative officer at Riva Hospital, और मैं इस प्ले का एडिटर इन चीफ भी हूँ। Hello everyone, I am Patel Mahi, a second year medical student at Medical College Baroda, and I am playing role of Mrs. Lata Malhotra, wife of Mr. Vikram Malhotra. Hello everyone, I am Vandan Thakkar, a second year MBBS student at Medical College Baroda, and I am playing the role of Dr. Arjun Mehta, a third year surgery resident at Riva Hospital. Hi everyone, I am Prakriti Ria, second year MBBS student at Medical College Baroda. I'll be playing the role of Dr. Kavya, a second year surgery resident at Riva Hospital. Hi, I am Prince Malani, second year MBBS student at Medical College Baroda, and I am playing the role of Dr. Ravi, third year surgery resident at Riva Hospital. Hello everyone, my name is Pradal Prasang, second year MBBS student at Medical College Baroda, and I am playing the role of Dr. Suresh, AP of Surgery Department at River Hospital. Hey everyone, myself Prince Aparya, a second year MBBS student at Medical College Baroda. I am playing the character of Ramesh Parmar, the patient. Hello everyone, my name is Riddhi Prajapati and I am second year MBBS student from Medical College Baroda, and I am playing the role of Priya, daughter of Ramesh Parmar. Hello, I am Sujan Sohagya, a second year MBBS student from Medical College Baroda, and I am playing the role of Manoj, relative of Ramesh. Hey everyone, I am Ayan Qureshi, second year medical student at Baroda Medical College. I am playing role of Advocate Samir Khanna. Hello everyone, I am Ruja Shah, a second year MBBS student at Medical College Baroda. I am playing the role of Dr. Ananya Roy, head of ethics committee at Riva Hospital. Hello everyone, I am Dhruta Patel, second year MBBS student at Medical College Baroda, and I am playing Dr. Zainab, a psychiatrist at Riva Hospital. Hello everyone, myself Dulan Nitesh, a second year MBBS student at Medical College Baroda. I am playing Dr. Rajesh, HOD in Surgery Department, Riva Hospital. Hi everyone, myself Harsh Joshi, second year MBBS student at Medical College Baroda. I am playing the role of Dr. Vijay, an intern at Riva Hospital. Hello everyone, I am Urvi Galia, second year MBBS student at Medical College Baroda. I am playing the role of Sister Jenny at Riva Hospital. Hello everyone, I am Pari Dave, second year MBBS student at Medical College Baroda. I am playing the role of Dr. Naina, the oncologist at Riva Hospital. Hello everyone, myself Rajput Vishal. I am second year MBBS student at Medical College Baroda, and I am playing a role of Ashok Tripathi, IMR from Moon Pharmaceutical Company. I am Riva Agrawal, first year MBBS student at Medical College Baroda. I am playing as Aarti. Hello everyone, I am Nancy Solanki, third year MBBS student at Medical College Baroda, and I am playing the role of Mrs. Sudha. Hello everyone, I am Priyansh Panchal, second year MBBS student of Medical College Baroda. I will be playing the role of security guard. Namaskar, I am Divyam Joshi, a second year MBBS student at Medical College Baroda, and I am a Chief Management Director.
Hello everyone, I am Alisha Malik, a final year student here at Medical College Baroda. I am the chief costume stylist and the anchor of the production The Inferno. Hello everyone, myself Hiragja And myself Swayam Gohil, second year MBBS students. at Medical College Baroda. And we are the video editors of this play. और आपके पास जो प्यारा सा इनविटेशन कार्ड आया होगा वो भी हमने बनाया है. कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि. नमस्कार, मैं हूं नजमुद्दीन नजमी, अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा और इस कहानी का लेखक भी हूं और टीम लीड भी हूं. और बहुत हुआ परिचय ईश्वर के नाम से और गुरुओं के आशीर्वाद से. आइए शुरू करते हैं. यह फिल्म पूर्णतः काल्पनिक है. इसमें दर्शाए गए पात्र, घटनाएं या संगठन का वास्तविक व्यक्तियों या परिस्थितियों से कोई संबंध संयोग मात्र है. प्रस्तुत विचार कलात्मक हैं और वास्तविकता को दर्शाने या किसी को क्षति पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते. दर्शक विवेक आवश्यक है. धन्यवाद. हिस्ट्री किसने देखा पेशेंट को? सर 42 साल का मेल है, ऑटो ड्राइवर. विजय जल्दी इसी लगाओ. डॉक्टर साहब अभी कोई बात नहीं, पहले आपको ठीक करते हैं. भाई यार, आज रात का ये तीसरा कार्डियक का केस है. लगता है इन मरीजों के दिलों को भी नाइट शिफ्ट ही मिली है क्या? विजय जल्दी बीपी चेक करो. छोड़ना यार, 120/80 लिख दे. वैसे भी कौन सा इंटर्न यहाँ बीपी नापता है? इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? क्योंकि रवि, हर केस में किसी की जिंदगी है. देख इनकी आंखें, ये मरने से नहीं किसी और को पीछे अधूरा छोड़कर जाने से डर रही है. इसी लाओ जल्दी. यार भव्य, ये ऑडियंस हम दोनों को देखकर इतना कंफ्यूज्ड क्यों लग रही है? अरे कंफ्यूज तो होगी ही. हम तेरे छोटे मोटे नरेटर, कौन ही जानेगा हमें. हाँ वो तो है, पर कोई बात नहीं. हमें जानना इतना भी जरूरी नहीं है, बट इन्हें जानना बहुत ही जरूरी है. ये है डॉक्टर अर्जुन, थर्ड ईयर रेसिडेंट, ब्रिलियंट डॉक्टर, academically very well gifted and top scorer. बट ये हॉस्पिटल इतना खाली सा क्यों लगता है? मतलब इतनी इंटेंस सिचुएशन है और सिर्फ एक ही डॉक्टर. नहीं, है भी ना दूसरे डॉक्टर, जैसे हमारे डॉक्टर सुरेश. अच्छा, डॉक्टर सुरेश. हाँ, दिख क्यों नहीं रहे? असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी और एक दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार. पर है कहाँ वो? अब दिख नहीं रहा. लगता है डॉक्टर सुरेश के आने का वक्त हो गया और हमारे जाने का. ऑक्सीजन दो, एस्पिरिन प्रोपिडोग्राफ लोड करो, कार्डियक इंजन चेक करो. हाँ, इसी जगह. ST elevated myocardial infarction. Pretty straightforward केस है अर्जुन. प्रोटोकॉल्स फॉलो करो. कंसेंट लो, थ्रोम्बोलाइटिक्स दो और आईसीयू में भी शिफ्ट कर देना. नेक्स्ट केस. सर 1 मिनट. रमेश जी, क्या आपको पहले कभी पेट में छाले या कोई बड़ा ऑपरेशन ऐसा कुछ हुआ है? डॉक्टर साहब, 10 बरस पहले एक्सीडेंट में पीटो. अरे अर्जुन, ये सब कुछ इररिलेवेंट है. कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं मगर कुछ एब्सोल्यूट नहीं होता. इन सब में टाइम पास मत करो और आईसीयू में शिफ्ट करो इन्हें. लेकिन सर, थ्रोम्बोलिसिस में ब्लीडिंग रिस्क रहेगा और थ्रोम्बोलिसिस चालू करते ही इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई तो? अच्छा, और प्रोटोकॉल्स?
Protocols exist for a reason, Arjun. To protect us, not these patients. किताब में लिखा है ना कि STMI में थ्रोम्बोलाइसिस देते हैं, तो बस देते हैं। लेकिन सर, मेडिसिन तो कभी इस बारे में था ही नहीं ना कि आसान क्या है। वो तो इस बारे में है कि सही क्या है। अच्छा, और पैसे? पैसे कौन देगा? ये ऑटो ड्राइवर। 2-3 लाख का प्रोसीजर है एंजियोप्लास्टी और थ्रोम्बोलाइसिस 15,000 में निपट जाएगा ये। तो सर क्या गरीबी मौत का फरमान है? क्या इस पेशेंट को हक नहीं है बेस्ट ट्रीटमेंट पाने का? क्या हो रहा है यार? सर, ये डॉक्टर अर्जुन प्रोटोकॉल्स फॉलो करने से मना कर रहे हैं। STMI है, थ्रोम्बोलाइसिस इंडिकेटर होता है, मगर ये तो कुछ ब्लीडिंग के कुछ बहाने बनाकर सब कुछ डिले करवा रहे हैं। हाँ ठीक है, आपका क्या कहना है डॉक्टर अर्जुन? सर, एंजियोप्लास्टी बेस्ट ऑप्शन है इस केस में। थ्रोम्बोलिसिस में ब्लीडिंग रिस्क रहेगा पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री के कारण, और नॉन मैलिफिसेंस का तो प्रिंसिपल ही कहता है कि डू नॉट हार्म, चाहे कुछ भी हो। और सर, अगर हम हार्म का रिस्क बढ़ा रहे हैं बेटर ऑप्शन अवेलेबल होने के बावजूद भी, तो क्या ये एथिकल है सर? सही बात है अर्जुन, एक्सपीरियंस बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं। डॉक्टर सुरेश, क्या इमरजेंसी कैसे अवेलेबल है? इमरजेंसी कैसे अवेलेबल है? हाँ सर है, मगर ऐसा मेंशन पेमेंट का अरेंजमेंट मैं करूंगा। आप एक काम करो, पेशेंट को कैसे शिफ्ट करो। और एक और बात, प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट है पर पेशेंट का कंटेक्स्ट भी। अच्छा किया, पर याद रखना हर बार तुम ऐसे फाइट करोगे तो तुम्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, सबका प्रेशर आएगा। क्या तुम तैयार हो? सर, मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ कि मेडिसिन इस बारे में है ही नहीं कि आसान क्या है, वो इस बारे में है कि सही क्या है। मैंने ये लाइन पहले भी सुनी है, ऐसे ही एक यंग डॉक्टर के मुंह से 35 साल पहले। गुड गुड। इंटर्न। अरे बेटा, तू हॉस्टल से कैसे आई? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ रिलेटिव्स का आना अलाउड नहीं है, आप बाहर जाइए। पापा ने मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, मैं यहीं रहूंगी। पापा आप ठीक हो जाओगे। देखिए, आप चिंता मत करिए, हम इन्हें एक प्रोसीजर के लिए ले जा रहे हैं, इनकी एंजियोप्लास्टी होगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर डॉक्टर साहब, ऑपरेशन का खर्चा अभी तक तो सारी जिम्मेदारियों का सिर्फ पापा के सर था। अरे अभी आपके पापा की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसों की चिंता मत कीजिए, वो मैनेज हो जाएगा, विश्वास रखिए। आप नहीं आ सकते। मैं पापा के साथ रहूंगी। आप नहीं आ सकते यहाँ। वाओ, डॉक्टर अर्जुन, फाइनली वेल डन। आज इनके एक्शन से दिखा ही दिया कि डॉक्टर्स में भी अभी भी थोड़ी सी तो इंसानियत बाकी है। लगता है इन्होंने एक भी एटकॉम का प्रिंसिपल वेस्ट नहीं जाने दिया। डॉक्टर अर्जुन इज द गोटेड एग्जाम्पल फॉर ऑल डॉक्टर्स। उनसे बड़ा तो कोई, उनसे बड़ा पागल, डॉक्टर अर्जुन से बड़ा पागल कोई नहीं होगा। 10,000 महीने के कमाने वाले रमेश को 3 लाख की सर्जरी करा दी। अब क्या होगा? अब बस 10-20 साल तक गरीबी में रहना पड़ेगा, घर गिरवी रहेगा, बेटी की शादी नहीं होगी। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर अर्जुन, वाह। अरे पर गवर्नमेंट ग्रांट्स और चैरिटी फंड्स भी तो होते हैं ना, वो सब कवर कर लेते हैं, ठीक है? तुझे तो चिंता मत कर। चैरिटी फंड्स? हाँ? अभी तुझे पता चलने वाला है कितने काम आएंगे। ग्रीटिंग सर। कहो अभिजीत, लास्ट क्वार्टर के क्या रिपोर्ट सर? सर, लास्ट क्वार्टर में 18% ग्रोथ हुई है और पेशेंट इनफ्लो भी काफी बढ़ा है। Happy for the team Abhijit, but the team can do much better than this. जी सर, सही बात है। और सर, मैं आपको नए कार्डियक विंग के ओपनिंग के बारे में भी याद कराना चाहता हूँ।
हाँ वो सब याद है मुझे, बट बिफोर आई हैंग अप यू मस्ट रिमेंबर, ओके, ये हेल्थ केयर भी एक बिजनेस ही है. एट द एंड प्रॉफिट कम्स फर्स्ट फॉर अस. कहो सुरेश, चाय कॉफी कुछ लोगे? अरे नहीं सर, मैं एक आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट केस के बारे में डिस्कस करना आया हूँ. कहो. अरे कल रात वो ऑटो ड्राइवर वाला केस, रमेश कुमार, डॉक्टर अर्जुन ने उनकी एंजियोप्लास्टी करवाई है, 1.5 लाख का प्रोसीजर, और वो भी फ्री में. एक सेकंड, क्या कहा? फ्री में. ये किसने ऑथोराइज किया? यही सर, अपने डॉक्टर राजेश ने. डॉक्टर राजेश, ओल्ड स्कूल डॉक्टर. ये पेशेंट पहले हॉस्पिटल बाद में, उसे क्या लगता है उसकी पगार ये पेशेंट देंगे? ठीक है, नोबल बट अनसस्टेनेबल. तुम तो जानते हो ना सुरेश, ये हॉस्पिटल चैरिटी से नहीं चलता. बिल्कुल सर. और ये डॉक्टर अर्जुन, ये बहुत आइडियलिस्टिक है तो जूनियर रेसिडेंट ही, मगर सीनियर प्रोफेसर्स को चैलेंज करता ही है. फिर ये अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की जगह अपने एथिक्स से चलता ही है. क्या? एक सेकंड, वापस से. ये प्रोटोकॉल्स की जगह एथिक्स को फॉलो करता है. ये एथिक्स वाले ना बहुत देखे मैंने, आते हैं जाते हैं कौड़ी के भाव में. इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हॉस्पिटल एथिक्स पे नहीं चलता, ठीक है? तुम तो जानते हो ना सुरेश, हमें ऑपरेशंस रन करने हैं, स्टाफ को सैलरी देनी है, ये जो मशीन चलाते हैं ये लोग, उसका मेंटेनेंस हम देते हैं. हम, तुम्हें क्या लगता है ये चैरिटी पे होता है सब? बिल्कुल सर, मेरा भी यही मानना है. मुझे लगता है हमें कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए. ये काम जो कर रहे हैं वो एथिकली गलत नहीं है, शब्द मजाकिया है, पर आई थिंक वी शुड कॉल एडवोकेट समीर खन्ना इन दिस. अलिया, अब विक्रम तो एकदम मारवाड़ी छे. एथिक्स की कोई कदर ही नहीं है इसे तो. और पैसा, ये क्या ही कर लेगा इतने पैसों का? ओ बेवकूफ, विक्रम मल्होत्रा नाम है, पूरा बंगाली है, बंगाली. और ये तू कैसे शोज देख रही है? हाँ, जो ऐसे स्टीरियोटाइप्स आ गए. ऐसे कैसे शोज नहीं देखे मैंने, ठीक है? अच्छे खासे शोज देखे, जैसे कि द गुड डॉक्टर. तू उसके डॉक्टर्स को देख लेना, फुल ऑन एथिकल होते हैं वो लोग. पैसों के चक्कर वैसे पड़ते भी नहीं है इसके तरफ. क्या बोली द गुड डॉक्टर? हाँ. नहीं, अंग्रेजी से हिंदी शोज पर आ जा, क्योंकि अब यहाँ का माहौल बदलने वाला है. द गुड डॉक्टर से अदालत में. एडवोकेट समीर इन. समीर जी आइए, परफेक्ट टाइमिंग. मिलिए डॉक्टर सुरेश से. डॉक्टर सुरेश, ये एडवोकेट समीर खन्ना हमारे हॉस्पिटल के लीगल एडवाइजर हैं. डॉक्टर साहब, आपने बुलाया? अरे हाँ, वो एथिक्स का जो वो है, क्या नाम है उसका, डॉक्टर अर्जुन. हाँ, ऑफ कोर्स. उन्हें कौन नहीं जानता. 3rd ईयर सर्जरी रेजिडेंट, टॉप परफॉर्मेंस एकेडमिकली और पेशेंट सेटिस्फैक्शन भी. बट डॉक्टर सुरेश वो फाइल पास कीजिए. यस, ये डॉक्टर अर्जुन ऑफ प्रोटोकॉल जाने की टेंडेंसी काफ़ी है. पिछले साल ऐसे 3 इंसिडेंट्स हो चुके हैं. काउंसलिंग लेटर्स फाइल में है, और ये रीसेंट एंजियोप्लास्टी वाला केस. तो डॉक्टर सुरेश आप मिल चुके हैं. ये समीर खन्ना, ये इंश्योर करते हैं कि जो पूरा हॉस्पिटल जो कि मेरा है ये लीगली सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ये झमेलों में हम ना फंसे. तो समीर जी, इस केस के बारे में आपका क्या कहना है? टेक्निकली डॉक्टर राजेश ने ऑथराइज किया, तो लायबिलिटी उनकी. पर जैसा पैटर्न चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो
हॉस्पिटल की क्या अहमियत रह जाएगी? हर किसी पे सवाल उठेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर भी। बात तो सही है आपकी, पर ये राजेश और अर्जुन ये लोग मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? एथिक्स कमेटी हियरिंग। एक सेकंड, एथिक्स कमेटी हियरिंग? हाँ, एथिक्स कमेटी है। डॉक्टर अनन्या हेड है उसके, उनके सामने केस प्रेजेंट करेंगे, वार्निंग मिलेगी, रिकॉर्ड में आएगा, तो फ्यूचर में एहतियात रखेंगे। हाँ, ये सही लग रहा है। ठीक है, अर्जुन नया लड़का है, सुना है बहुत टैलेंटेड है, पनिश नहीं करना चाहता, चाहो तो करियर खा सकता हूँ, पर एथिक्स मीटिंग रखकर जाने देते हैं उसे। ठीक है, ठीक है, यू मे लीव। यार ये तो बहुत ही गलत बात है। जस्ट एक रेसिडेंट को सबक सिखाने के लिए दो बड़े से डॉक्टर उसके अगेंस्ट ऐसे प्लॉट कर रहे, और अर्जुन की तो कोई गलती भी नहीं थी, वो तो जस्ट अपने एथिक्स को फॉलो कर रहा था। क्या गलत है इसमें? जो अर्जुन ने डॉक्टर सुरेश के साथ उस दिन किया था वो बदतमीजी है, बदतमीजी, एंड इनसबऑर्डिनेशन मस्ट बी पनिश्ड। अब तो देख अर्जुन लाला, तेरी तो फील्डिंग सेट है, अब आएगा ना मजा। ओए चुप, तू नैरेटर है ठीक है, और ज्यादा कैरेक्टर मत बन, और वैसे भी तू बहुत स्क्रीन टाइम खा रहा है, चल कितना इनसेंसिटिव है ये। भगवान ने ऐसे इनसेंसिटिव लोगों की वजह से ही सेंसिटिव पीपल भी बनाए हैं, जैसे कि डॉक्टर काव्या। आई लाइक हर, शी इज वेरी स्वीट। जब रमेश को एडमिट किया था उसके साथ, अर्जुन के साथ ही थी वो। रमेश से याद आया उसकी कंडीशन को थोड़ा रीचेक कर ले। और रमेश जी, आज आपकी तबीयत कैसी है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल रही, हार्ट में एक छोटा सा ब्लॉकेज था जो क्लियर हो चुका है। अब तो बस आप रेस्ट करिए, दवाई टाइम पे लीजिएगा, और हाँ, डाइट का ध्यान रखिए, फिर देखना आप कितनी जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं लेना है आपको। अभी को भी काफ़ी दिनों तक काम बिल्कुल हल्का रखिए और आराम करने पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर साहब, हमारी रिक्शा हुई तो हमारी रोजी रोटी, और ओके बिना घर गृहस्थी कैसे चली, और हमारी बिटिया की शादी भी तो करी, कैसे करेंगे? पापा, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, मेरी बारात में ऑटो नहीं आप नाचेंगे। शादी तो बाद में भी हो जाएगी, पहले आप ठीक हो जाओ। आपकी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, आपकी हेल्थ प्रायोरिटी है, बाकी सब तो बाद में भी मैनेज हो जाएगा। अरे वाह, बड़े साहब आईसीयू में है, एसी में, प्राइवेट अटेंशन, और हमें किसी ने फोन तक नहीं किया। चाचा, यहाँ तमाशा मत करिए, मैंने कल रात को आपको मैसेज किया था। गरीब आदमी हो, अपनी औकात से ज्यादा इलाज क्यों करवा रहे हो? और ये हॉस्पिटल है कि 5 स्टार होटल? पता भी है कितने का खर्चा आएगा? जी, बिल की चिंता आप मत कीजिए, वो मैनेज हो जाएगा। अच्छा, आप देंगे क्या, या फिर चैरिटी है ये? हम भिखारी नहीं है डॉक्टर साहब। भैया प्लीज तमाशा मत करें, भीड़ देख रहे हो। तू चुप कर बेवकूफ, तेरी वजह से ही ये सब हुआ है। पहले तो ये ऑटो चलाने का काम, और फिर बेटी को बड़े कॉलेज में पढ़ाया, वो भी अंग्रेजी मीडियम में, और अब उसकी शादी भी करवा दी है। औकात देखी अपने कभी। चाचा, पापा ने बचपन से मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मुझे पढ़ाया, जो आपने तो अपने बच्चों के साथ नहीं किया। पापा ने सपने देखे हैं मेरे लिए, और मैं उन्हें पूरा करूंगी। बच्ची मेरे बीच में बहुत बोलती है। इतना चक चक कर
हुआ इसकी पढ़ाई का? पहले खर्चा बढ़ा और अब इसकी जुबान भी देखो किसी नागिन की तरह मार रही है। देखो। अरे ओए! अगर तुम सोचा नहीं रहे थे, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा बाबा का बगीचा नहीं। और उसमें भी ये तो आईसीयू है। यहाँ पेशेंट को आराम चाहिए। आपको जो भी तमाशा करना है वो बाहर जाके प्लीज। ठीक है, मैं चलता हूँ। और हाँ, जब पैसों की बात आए ना तो मुझे मत बुलाना, मेरे पास पैसे नहीं है अभी। हाँ जाओ अभी। आपके पापा भी आपको खुश देखना चाहते हैं, but his health is speaking louder. He needs to rest. पर तुम संभालो खुद को। डॉक्टर साहब, आप लोग बहुत अच्छा माने, पर आप समझ रहे हैं बिल पैसा वैसा। डॉक्टर साहब, आपने जबरन नेकी की हमारे लिए, तो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाए, पर मैं आपको बोझ नहीं बनना चाहता। रमेश जी, ये क्या बोल रहे हैं आप बोझ नहीं है, आप एक पेशेंट हैं और पेशेंट का हक है बेस्ट ट्रीटमेंट पाने का। पैसों की चिंता आप मत करिए, वो मैं देख लूंगा। हॉस्पिटल की स्कीम्स है, चैरिटी है, थोड़ा बहुत मैं भी मैनेज कर लूंगा। एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर्स, आईसीयू चार्जेस, मेडिसिन सब मिला करके लगभग 2.5 लाख हुआ है अब तक। प्लस अभी तो इनके 4-5 दिन का एडमिशन और बाकी है। मेडिसिन वगैरह मिला करके तो 3 से 4 लाख हो जाएगा। हमारे पास तो सिर्फ 40,000 है पापा की एफडी में, और वो तो मेरी शादी के लिए थे। बेटा शांत हो जाओ। काव्या, मैं यहाँ संभालूंगी, तुम जा सकती हो। बेटा चिंता मत करो, शांत हो जाओ। पहले अपने पापा को तो ठीक हो जाने दो। कैसे शांत हो जाओ? मेरे पापा के इलाज के पैसे आप देंगे क्या? बेटा मैं तुम्हारी परिस्थिति समझ सकती हूँ। भला आप कैसे मुझे समझोगी? देखो बेटा, मैं भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति में फंस गई थी। तब एक संस्था ने आके मेरी मदद की थी। तुम्हें भी कोई ना कोई जरूर मदद करेगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, हौसला रखो। ठीक है, अभी मुझे मेरे पापा के पास छोड़ दो। पर तो आप सब लोग देख सकते हैं, हम कितने भी नारे लगा लें, हेल्थ केयर फॉर फ्री, हेल्थ केयर फॉर ऑल, बट फिर भी ओए तू उधर क्या कर रहा है? ऊपर आ, चल ऊपर आ, जल्दी। कोई काम धंधा नहीं है क्या कर रहा तू उधर? अरे यार, नहीं होता काम चोरी भी तो चीज होती है ना, बताओ। अच्छा, आराम से शो देख रहा था, फालतू में डिस्टर्ब कर देती है, हट। अच्छा, काम चोरी भी तो एक चीज होती है, तो करता रहे काम चोरी, और फिर वो नशेड़ी की तरह तू भी ऐसे शोर मचाते रहना। शोर? उस नशेड़ी से ज्यादा शोर तो वो नर्स मचा के चली गई, वो भी आईसीयू में। कान फट गए मेरे तो सारे। वो अपना काम कर रही थी, ठीक है? अगर ऐसा नहीं करती तो रमेश को कितना स्ट्रेस हो जाता। स्ट्रेस? हाँ, स्ट्रेस तो उसे वो बिल देखकर भी हुआ। अब क्या करेगी बता? यकीन है चैरिटी फंड्स पे? मुझे चैरिटी फंड्स पे तो यकीन नहीं है, बट मुझे डॉक्टर अर्जुन पे पूरा भरोसा है। और वो दिन कुछ खिचड़ी पकाने तो गए ही है, लगता है कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा ऐसा है, चल देखते हैं। अरे यार, कितने कूल लोग हैं, पूरा दिन सीरियस रहते हैं। अब इनसे कैसे बात करूं? बकवास मत कर रवि। भाई चल ना यार, रजवाड़ी पे चाय पी कर आते हैं। और तूने कल रात से कुछ खाया भी नहीं है। अरे क्या हुआ भाई, तू फिर वही कर रहा है? अरे पेशेंट के फाइनेंशियल टेंशन तू क्यों ले रहा है? तो क्या करूं रवि, वो एक ऑटो ड्राइवर है, उसकी बेटी की शादी है, और ये इतना बड़ा बिल, ये भरते भरते उसकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। तो क्या हुआ? तू बता, तेरी सैलरी कितनी है? 60,000?
उसमें से 30,000 तो तू घर पे देता है, तेरे पास क्या बचा, तू कैसे भरेगा? क्राउड फंडिंग कैसा रहेगा? हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल सकते हैं और वहां से फंड रेज कर सकते हैं। हाँ, स्टोरी ही क्यों, रील बनाते हैं ना, हम तीनों ऐसे ठुमक ठुमक करते हैं। कम ऑन काव्या, बी प्रैक्टिकल। हर महीने ऐसे 10 केसेस आते हैं, सबके लिए तो थोड़ी क्राउड फंडिंग करने जाएंगे। और तो और ये हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी थोड़ी। तो क्या करें रवि, तू ही बता। बिल नहीं दे सकते तो क्या उनकी ट्रीटमेंट रोक दें या बिना ट्रीटमेंट के उन्हें डिस्चार्ज कर दे? देख भाई, मैं भी सिंपैथाइज करता हूँ, माना कि हम डॉक्टर्स हैं, पर हमारी सैलरी तो मजदूरों वाली है ना। सिस्टम चेंज करेगा, अकेला तू कितना ही कर पाएगा? रवि सर एज अ पॉइंट डॉक्टर अर्जुन, एम्पैथी इंपॉर्टेंट है, पर बर्नआउट भी तो रियल है। आप अकेले कितने ही पेशेंट्स का फाइनेंशियल बर्डन ले सकते हो? तो काव्या, बेनिफिसेंस का मतलब ही क्या है? यानी कि हम डॉक्टर्स का फर्ज है कि हम पेशेंट के वेलबींग, उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उसको प्रायोरिटी दें, लेकिन क्या सिर्फ तब तक जब तक वो अफोर्डेबल हो? मैं फिर से वही लाइन दोहराना चाहूंगा कि मेडिसिन इस बारे में है ही नहीं कि आसान क्या है, वो इस बारे में है कि सही क्या है। जी मैम, हॉस्पिटल प्रशासन ने कंप्लेन दी आपके लिए, आपको कल बैठक में हाजिर होना है। नोटिस है आपके लिए। क्या नोटिस? इनके लिए क्यों? इन्होंने तो एक पेशेंट की जान बचाई थी, फिर इनके लिए नोटिस क्यों? ओ मैडम, ये सब अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है? आपको कल सुबह 10 बजे हाजिर होना है। कॉन्फ्रेंस रूम में डॉक्टर ने वो चेयर करने वाली है, और हाँ, आपको अपना केस प्रेजेंट करना है। ये लो। ठीक है, मैं आ जाऊँ। आ जाना टाइम पे। भाई, मैंने तो कहा ही था, सिस्टम से मत लड़, बेकार के पंगे हो गए। तो क्या गलत किया मैंने रवि? एक पेशेंट की जान बचाना ये गलत है, या उसके साथ कुछ गलत ना होने देना ये गलत है, या उसका फायदा जिसमें हो वो करना गलत है? अनऑथराइज्ड ट्रीटमेंट एलोकेशन, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, व्हाट नॉनसेंस! काव्या, वो अब सेंस हुआ नॉनसेंस। अब मुझे अपना केस जस्टिफाई करना ही होगा, और खैर ये सही है। फाइनली इस बारे में एथिक्स की बात तो होगी, मुझे अपना नजरिया रखने का मौका तो मिलेगा, और शायद इस बार हम सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंज ला दें। तो बता ना, अभी भी यकीन है डॉक्टर अर्जुन पे? पता नहीं यार, आई डोंट नो एनीमोर। देखा, इसलिए मैं कहता हूँ एटीट्यूड उतना ही रखो जितना ऑल्टीट्यूड हो। जैसे 3 दिन सुबह क्या उठ ले 9 बजे की क्लास क्या अटेंड कर ली, उसके बाद ये नहीं बोलते कि अब तो टॉप ही मार लूंगा। वैसे ही ना ये छोटे मोटे आखिरी को ना सिस्टम बदलने की बात नहीं करनी चाहिए। क्या बदलने की बात नहीं करनी चाहिए? हाँ सिस्टम। हाँ, आया बड़ा, सिस्टम बदल दूंगा, सिस्टम फाड़ दूंगा। अब देखते हैं क्या करता है वो अकेला। ओए, अकेला होगा तू, ठीक है? डॉक्टर अर्जुन के पास तो है उसकी मेंटर। अच्छा, कौन है ये मेंटर, जरा बता दो। डॉक्टर नैना, और तू देख लेना कितनी कूल है वो। कैसी हो आरती? अरे मिसेस मल्होत्रा, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर नैना, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है आरती आपको हर रोज याद करती रहती है। ऐसा? मुझे भी आरती की बहुत याद आती है। अरे वाह आरती, ये तो बहुत प्यारी बटरफ्लाई बनाई है ना तुमने। आरती, चलो तुम्हारा आराम करने का टाइम हो गया। नहीं दीदी, मुझे आंटी के साथ ड्राइंग करनी है। अरे डॉक्टर काव्या, आप यहाँ? हाँ मैम, मैं एक्चुअली एक पीडियाट्रिक सर्जन को ढूंढ के आई हूँ। एक केस के सिलसिले में मुझे उनकी कुछ राय चाहिए। पीडियाट्रिक सर्जन तो अभी कोई अवेलेबल नहीं है। मीनवाइल, मीट मिसेस लता मल्होत्रा, ये हमारे हॉस्पिटल से ऐसे ही आया करते हो इन बच्चों से मिलने, काफ़ी लगाव है मुझे इनसे। एक्सक्यूज मी, आई विल जॉइन यू। देखो बेटा आरती, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। वाह आंटी, बलून्स और
आप यहाँ अक्सर आते हैं? हाँ, जब भी वक्त मिलता है इन बच्चों से मिलने चले आती हूँ। इन्हें थोड़ा खुश करके मुझे भी खुशी महसूस होती है। पता है दीदी, आंटी मुझे स्टोरी सुनाती है और परसों ही मेरे लिए प्रिंसेस वाली बुक भी लाई थी। और बेटा, जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी ना, हम साथ में पार्क घूमने जाएंगे। आप आरती की कंडीशन के बारे में जानती हैं? हाँ, स्टेज 4 ल्यूकेमिया डॉक्टर नैना ने बताया था। वैसे ट्रीटमेंट फाइनेंशियली भी काफ़ी ड्रेनिंग रहा है आरती की फैमिली के लिए। हाँ, पर ये तो अनफेयर है ना कि ट्रीटमेंट का एक्सेस पैसों पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, सिस्टम ही ऐसा है, जिनके पास पैसे हैं उनके लिए तो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। और बाकी आप कल रात की बात ले लीजिए, रमेश कुमार, एक ऑटो ड्राइवर, कार्डियक इमरजेंसी का केस, लाइफ सेविंग एंजियोप्लास्टी जरूरी थी पर नहीं, हॉस्पिटल को पेशेंट की थोड़ी पड़ी है, उन्हें तो बस अपना प्रॉफिट दिखाई देता है। इसलिए रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल सब आ जाते हैं बीच में। तो फिर रमेश जी के साथ क्या हुआ? फिर क्या, डॉक्टर अर्जुन, उन्होंने प्रोटोकॉल्स तक की परवाह नहीं की, सिर्फ पेशेंट की लाइफ को प्रायोरिटी दी। पर अब उनकी इस नेकी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें एथिक्स कमेटी के सामने प्रेजेंट करना चाहता है। मिस्टर विक्रम मल्होत्रा, द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने ये कंप्लेन फॉरवर्ड की है। और डॉक्टर सुरेश, जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, जो ऐसे खुद तो कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते, पर अब वो भी बैठे होंगे उस कमेटी में उन्हें जज करने के लिए। डॉक्टर काव्य, आपको ये सब कैसे पता? मैं डॉक्टर अर्जुन के साथ ही काम करती हूँ और इसीलिए मैं ये बात जानती हूँ कि हम डॉक्टर्स कितनी मेहनत करते हैं पेशेंट्स की लाइफ बचाने के लिए। लेकिन इन हॉस्पिटल वालों को तो सिर्फ अपना प्रॉफिट ही दिखाई देता है। और जब कोई डॉक्टर, कोई एक डॉक्टर अर्जुन जैसे सच्चे और नेक डॉक्टर जब ये सिस्टम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें एथिक्स की बेड़ियों में बांध दिया जाता है। आई एम सॉरी, आई थिंक मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। नहीं डॉक्टर काव्या, आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन को तो सिर्फ पैसे दिखाई दे रहे हैं, पेशेंस नहीं। पर जब ऐसे सिस्टम में डॉक्टर अर्जुन जैसे डॉक्टर अपनी आवाज़ उठाएंगे तभी तो चेंज आएगा। और डॉक्टर काव्या, आप शायद मुझे कोई बाहरी समझ रही होगी जो बस इन बच्चों के लिए तोहफे लेकर आती है, पर ऐसा नहीं है। मैंने भी इन पेशेंट्स की हालत करीब से देखी है और इसीलिए मेरे सब। अरे मिसेस मल्होत्रा, आपकी पल्स तो बहुत वीक है, ये चक्कर पहली बार आ रहा है ऐसा पहले भी कभी? नहीं डॉक्टर, पिछले कुछ दिनों से अक्सर चक्कर आते हैं। तो आपने कोई टेस्ट करवाया, किसी डॉक्टर को दिखाया अब तक? नहीं, सोचा है आज बता। तो मैं आपकी फैमिली को कॉल करूँ, कोई आया है आपके साथ? नहीं, वो थोड़ी सी बिजी है, मैं हैंडल कर लूँगी। अरे मिसेस मल्होत्रा, आप अकेली हैं, इन केस कुछ सीरियस हुआ तो? नहीं, आई हैंडल। घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम पहले टेस्ट करवाते हैं फिर डिसाइड करेंगे तब आप आराम करेंगे। ओह माय गॉड, क्या हुआ मिसेस मल्होत्रा? माँ, मैंने पिछले कई हफ्तों से चक्कर आ रहे हैं और इन्होंने अब तक कोई टेस्ट भी नहीं करवाया। सिस्टर जेनी। हाँ डॉक्टर, आप इन्हें ले जाइए, हमें इन्हें रिपोर्ट्स करवाना है। और डॉक्टर काव्या, आप भी इनके साथ जाइए। ओके डॉक्टर। मैम आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ अर्जुन, बोलो। मैम, कल एथिक्स कमेटी की हियरिंग है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो सही किया वो भी गलत हो सकता है। कुछ रमेश कुमार का केस था ना, फ्री एंजियोप्लास्टी। अरे उसकी तो कंप्लेन भी आई थी। हाँ मैम, वही डॉक्टर सुरेश ने फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की है और अब मुझे जस्टिफाई करना ही होगा कि मैंने रूल्स तोड़कर भी सही किया है। पर ऑनेस्टली मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। डॉक्टर सुरेश सीनियर है, मिस्टर मल्होत्रा पावरफुल है, तो पूरा सिस्टम तो उन्हीं के फेवर में है और मैं तो एक मामूली सा रेजिडेंट हूँ, मेरी कौन ही सुनेगा। तुम्हें पता है अर्जुन, ऑन्कोलॉजी में ये डिलेमा और रोज रहती है। आरती को ही देखो, स्टेज 4 ल्यूकेमिया, अग्रेसिव कीमोथेरेपी चाहिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए, जो कि बहुत फाइनेंशियली ड्रेनिंग है। पेरेंट्स मिडिल क्लास है, इंश्योरेंस भी लिमिटेड है। तो ऐसी सिचुएशंस में मैं होप देती हूँ कि उसके जो ट्रीटमेंट है उसकी सक्सेस रेट 20% है। तो क्या पता मेरे होप देने से वो 20% में से हो। तो मैम, आपका क्या मानना है? क्या मैंने जो किया वो सही था?
मेरा ये मानना है अर्जुन कि कभी कभी होप देना भी ट्रीटमेंट है। तुमने उन्हें होप्स दी ना, उन्होंने उनकी बेटी के शादी का सपना देखा है और ये सपना देखने का मौका तुमने उन्हें दिया। पर मैम होप से बिल तो नहीं भरते ना, ना ही होप से सिस्टम बदलता है और ना ही होप से मिस्टर मल्होत्रा कन्विंस होते हैं कि पेशेंट की जिंदगी पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्जुन से निकल मत पड़ो, तुम्हारे अंदर ये जो आइडियलिज्म है वो रेयर है, वो प्रेशियस है, इसे नहीं खोना है। पर कल कमेटी में मैं क्या कहूँगा? कल कमेटी में तुम्हें अपने एथिक्स को डिफेंड करना है। पहला, बेनिफिशियंस, पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट देना। दूसरा, नॉन बेनिफिशियंस, उन्हें हार्म से बचाना। ये दोनों तुम्हारे फेवर में। पर व्हाट अबाउट ऑटोनॉमी अर्जुन? क्या तुमने रमेश जी को सब क्लियर किया था? क्या तुमने उन्हें और ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए थे? क्या तुमने उन्हें कहा था कि उनकी एंजियोप्लास्टी 2.5 लाख की होगी? नहीं मैम, सिचुएशन इमरजेंसी की थी और मैं सिर्फ ट्रीटमेंट पे फोकस कर रहा था, तो उस चक्कर में फाइनेंशियल काउंसलिंग करना ही रह गया। और यही तुम्हारी कमजोरी है एथिक्स कमेटी के सामने कि तुम इन्फॉर्म कंसेंट लेना ही भूल गए। ऑटोनॉमी मिसिंग है, तुमने उनकी ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट नहीं की। तो मैं कल मैं क्या कहूँ कि मैंने गलती की? तुमने कोई गलती नहीं की अर्जुन, तुमने तो एक इंसान की जान बचाई, और अगर ये भी गलत होने लगा ना तो ये प्रोफेशन ही गलत। डॉक्टर अर्जुन, आप अकेले नहीं हैं। आपकी कंपैशन, आपकी इंसानियत, यही तो आपकी असली ताकत है। डॉक्टर काव्या सही कह रही है अर्जुन, तुमने जो किया वो बहादुरी थी। कल एथिक्स कमेटी के सामने तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारा जो डिसीजन था वो मेडिकली साउंड, एथिकली जस्टिफाइड, पर प्रोसीजरली इनकम्प्लीट था। तो एक और बात, 4th पिलर ऑफ मेडिकल एथिक्स, जस्टिस, इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, इसे नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नैना। सर, मैम, इमरजेंसी, आरती को ब्रेथलेसनेस हो रही है। केबीसी चेक करो, आईवी लाइन चेक करो, एक्सरे निकालो जल्दी। मैम, चेस्ट मूवमेंट एसिमेट्रिक है, लेफ्ट साइड में डिक्रीज है और लेफ्ट साइड में ब्रेथ साउंड भी एब्सेंट है। देखिए डेविएशन, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, अर्जुन thoracensis right now, we can't wait। पर मैं कैसे? ये एक पीडियाट्रिक पेशेंट और मैं अभी कोई पीडियाट्रिक सर्जन अवेलेबल नहीं है। You know the procedure, you can do it, just do it अर्जुन। पर मैं नहीं कर सकता। What if something goes wrong? What if I hurt her? अर्जुन, तुमने याद है तुमने मुझसे क्या कहा था कि मेडिसिन इज नॉट अबाउट व्हाट इज इजी, इट इज अबाउट व्हाट इज राइट। यही टाइम है, जस्ट डू इट। ठीक है, पर मैम कंसेंट इम्प्लाइड है अर्जुन, पेरेंट्स बाहर गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वी कांट वेट, वी हैव टू डू द प्रोसीजर। और भव्य, बता कैसी लगी डॉक्टर नैना? हाँ ठीक है, समझदार ही है, ज्यादा उत्साहित मत हो, ठीक है? हाँ तो समझदार तो होगी ना वो। डॉक्टर अर्जुन की मेंटर जो है, शी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन्स, एकदम मेरी तरह। हाँ बोलो यार। हाँ ठीक है, सही बोल रही है, तो सही डायलॉग बोला। पर फिर वो ब्यूटी विद ब्रेन्स तक ही, फिर तू शायद भूल गई थोड़ा। पर अब थोड़ा नरेटर वाला काम कर ले, एथिक्स कमेटी को एक बार इंट्रोड्यूस तो करवा ले। ठीक है, तो इस एथिक्स कमेटी हियरिंग में काफी लोग प्रेजेंट हैं जिन्हें आप मोस्टली जानते हो, जैसे कि डॉक्टर काव्या, 2nd ईयर रेसिडेंट सर्जरी, डॉक्टर रवि, 3rd ईयर रेसिडेंट सर्जरी, डॉक्टर अर्जुन, 3rd ईयर रेसिडेंट सर्जरी, एडवोकेट समीर, डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी, और साथ में ही है डॉक्टर राजेश, HOD सर्जरी, मिस्टर विक्रम मल्होत्रा, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। पर यहाँ पर बैकस्टेज पे मेरे को 2 नए लोग भी दिख रहे हैं ना? हाँ कर रही हूँ इंट्रोड्यूस। डॉक्टर जैनाब, साइकियाट्रिस्ट, एंड हेड ऑफ दिस कमेटी हियरिंग, डॉक्टर अनन्या रॉय। ओके देन, आई थिंक स्टेज सेट है और किरदार रेडी है, तो एथिक्स कमेटी मीटिंग शुरू।
एथिक्स कमेटी हियरिंग है। डॉक्टर अर्जुन मेहता वर्सेस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर मेहता, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही, हम सिर्फ एथिक्स डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यस मैम। गुड। एडवोकेट खन्ना, आप कंप्लेंट समराइज कीजिए। थैंक यू डॉक्टर रॉय। टू ऑल कमिटी मेंबर्स, ये केस सिंपल है पर इम्प्लीकेशन सीरियस। 12 दिसंबर को डॉक्टर अर्जुन मेहता, एक 3rd ईयर सर्जरी रेजिडेंट, ने एक पेशेंट रमेश कुमार को अनऑथराइज्ड ट्रीटमेंट एलोकेट की। स्पेसिफिकली PCI एंजियोप्लास्टी, जिसका कॉस्ट 2.5 लाख था, और ये डिसीजन 1 मिनट 2.5 लाख। यस, ये डिसीजन उनके HOD डॉक्टर राजेश वर्मा के अप्रूवल के साथ लिया गया, पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को नेग्लेक्ट किया गया था। ये कमेटी कुछ अहम सवालों के जवाब मांगती है। पहला, प्रोटोकॉल वायलेशन। हॉस्पिटल की पॉलिसीज कहती है कि 2 लाख से ज्यादा की प्रोसीजर्स के लिए फाइनेंशियल क्लियरेंस मैंडेटरी है, जो नहीं लिया गया। दूसरा, रिसोर्स एलोकेशन। हॉस्पिटल के पास लिमिटेड चैरिटी फंड्स है। ये केस जिसमें 2.5 लाख लगाए गए, क्या ये जस्टिफाइड है जब लिस्ट में और भी पेशेंट्स हैं? तीसरा, प्रेसिडेंट। अगर हर डॉक्टर ऐसे ही अपने बेसिस पे रूल्स तोड़ने लगा तो ऐसे तो हॉस्पिटल फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाएगा। डॉक्टर मेहता, मैं पर्सनली आपके इंटेंशंस पे सवाल नहीं उठा रहा, पर हॉस्पिटल के कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, ऑथोरिटी है, इंटीग्रिटी है, जो बस आप मेंटेन नहीं कर पाए। थैंक यू एडवोकेट खन्ना। डॉक्टर अर्जुन, योर डिफेंस। थैंक यू मैम एंड कमेटी मेंबर्स। मैं मुझ पर लगे हुए एलिगेशंस के डिफेंस में बस इतना कहना चाहूँगा कि रमेश कुमार STMI के पेशेंट, जिसमें क्लासिकल इंडिकेशन फॉर रीपरफ्यूजन थेरेपी था, पर डॉक्टर सुरेश ने थ्रोम्बोलिसिस सजेस्ट किया, जो कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था। पर मेरे सिर्फ 2 कंसर्न्स थे। एक कि पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी और इंटरनल ब्लीडिंग की थी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका था। और दूसरा, अब तो एविडेंस भी कहता है कि एंजियोप्लास्टी इज सुपीरियर देन थ्रोम्बोलिसिस, जिसमें लोअर इन्फ्रैक्शन रेट, लोअर स्ट्रोक रिस्क और लोअर मोर्टेलिटी है। तो मेरा तो सवाल ही यही था कि जब एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल है जो पेशेंट को ज्यादा सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकता है, तो क्या गरीबी एक सीमा होनी चाहिए? डॉक्टर अर्जुन, गरीबी एक हार्श रियलिटी है, हम सब एम्पैथाइज करते हैं। और प्रोटोकॉल्स का क्या? दे एग्जिस्ट फॉर ए रीजन, टू प्रोटेक्ट अस, नॉट दिस पेशेंट्स। लीगली हमें डॉक्यूमेंटेड कंसर्न्स, रिस्क काउंसलिंग सब चाहिए होता है, जिसमें से आपने कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर अर्जुन, एक सवाल, क्या आपने फाइनेंशियल काउंसलिंग की थी? पेशेंट और उनके परिवार को बताया था कि 3.5 लाख का बिल बनेगा, कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऑल्टरनेटिव क्या है? पर मैम, सिचुएशन इमरजेंसी की थी, पेशेंट मर रहा था, तो प्रायोरिटी तो उसकी जान बचाना ही थी ना, और फाइनेंशियल डिस्कशन तो बाद में भी हो जाता। तो क्या इसका मतलब आपने उन्हें पूरा सच बताया ही नहीं? इन्फॉर्म कंसेंट में फुल्ली इन्फॉर्म नहीं थे वो? पर मैम, सिचुएशन ही उतनी कॉम्प्लेक्स थी। सी डॉक्टर अर्जुन, फेथ एंड मेडिसिन, दे वॉक हैंड इन हैंड। तुम्हारे फेथ ने तुम्हें पेशेंट की जान बचाने के लिए पुश किया, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। पर पेशेंट का फेथ, उनका राइट टू नो द कंप्लीट पिक्चर, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब ही ये है, फ्री विल के साथ डिसीजन। देयर इज वन मोर कंपोनेंट दैट यू मिस्ड ऑन, एंड दैट इज शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, एक कॉन्सेप्ट जहाँ डॉक्टर और पेशेंट दोनों मिलकर ट्रीटमेंट पे डिसीजन लेते हैं। एक तरफ डॉक्टर का मेडिकल एक्सपर्टीज और दूसरी तरफ पेशेंट का पर्सनल प्रेफरेंस, दोनों इक्वली मैटर करते हैं। डॉक्टर अर्जुन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा ये मानना है कि हेल्थ केयर इज ऑल्सो अ बिजनेस एंड बिजनेस नीड्स टू प्रॉफिट। पर मैं एक इंसान भी हूँ। ये जो खिचड़ी आपने पकाई है, मेरा बस एक ही सवाल है आपसे कि अगर ये डॉक्टर राजेश से पहले
मेरे पास आते, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से बात करते और ये जो 2.5 लाख का आपने कचरा किया है इसे एलोकेट कराने के लिए प्रॉपर चैनल फॉलो करते, तो क्या आउटकम्स कुछ अलग होते हैं? सर शायद नहीं, और इनफैक्ट प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी हो जाता, पर साथ साथ डिले भी तो होता ना। ये जो रोना आप कर रहे हैं ना मेरे सामने, बहुतों को देख चुका हूँ मैं। आपको क्या लगता है ये आपातकालीन स्थितियाँ आपको ये इजाज़त देती हैं कि आप इस कमेटी को लांघ जाएं, इसके रूल्स की धज्जियाँ उड़ा दें? जरूरत नहीं है डॉक्टर अर्जुन को पढ़ने करने की। मैं कमेटी को एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि डिसीजन मेरा भी उतना ही था। मैंने 30 साल प्रैक्टिस की है और जब रमेश को देखा, उसका केस रिव्यू किया, डिसीजन लिया कि पीसीआई राइट चॉइस है और इसीलिए मैंने डॉक्टर अर्जुन को अथॉरिटी दी। और खैर रही बात पेमेंट की, तो उसका मैंने किया था। डॉक्टर राजेश, हम आपके एक्सपीरियंस और जजमेंट पे कोई डाउट नहीं कर रहे, आप प्लीज़ बैठ जाइए। पर सिस्टमिक अप्रोच वो क्या होना चाहिए था, वो एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है। आप सिस्टमिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो सिस्टमिक अप्रोच तो ये है ना कि पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दो। खैर अगर हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो क्या ही बात करूँ, इतना अनइक्वल कि रिच पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है बिना कोई सवाल के, और बेचारे गरीबों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। अर्जुन ने एक पेशेंट को इक्वल ट्रीटमेंट दी, ये प्रेसिडेंट सेट करता है या नहीं ये अलग बात है, पर ये मोरली रॉन्ग नहीं था। डॉक्टर वर्मा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मोरालिटी और लीगलिटी दोनों डिफरेंट है। हॉस्पिटल की पॉलिसीज है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, स्टेक होल्डर्स है। अगर ऐसे ही हर डॉक्टर अपने मोरालिटी के बेसिस पर रूल्स तोड़ने लगे, आई एम सॉरी, ऐसे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आप कौन? डॉक्टर काव्या शर्मा। मैं डॉक्टर अर्जुन के साथ ही काम करती हूँ। मैम मैंने रमेश जी का केस फर्स्ट हैंड देखा है। द पेशेंट्स वॉइस मैटर्स इवन व्हेन दे कांट स्पीक। रमेश जी बोल नहीं पा रहे थे पर उनकी आंखें कह रही थी बचाओ मुझे, मेरी बच्ची के लिए। डॉक्टर अर्जुन ने वही किया जो कोई भी कंपैशनेट डॉक्टर करता। ही लिसन्ड टू हिज अनस्पोकन वॉइस। डॉक्टर शर्मा, कंपैशन इम्पोर्टेंट है, मगर ये प्रोफेशन इमोशन पे नहीं चलता। ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। एविडेंस भी डॉक्टर अर्जुन को ही सपोर्ट करता है। सर, एंजियोप्लास्टी इज सुपीरियर टू थ्रोम्बोलाइसिस इन एचटीएमआई, ये एविडेंस है। डॉक्टर अर्जुन ने एविडेंस बेस्ड ही डिसीजन लिया था। और वैसे भी कंपैशन के बिना मेडिसिन नहीं, मशीन बन जाती है। प्लीज़ इधर कोई डिबेट नहीं चल रही। डॉक्टर काव्या, वी अप्रिशिएट योर इनपुट, बट प्लीज़ टेक योर सीट। डॉक्टर अर्जुन, आपसे एक सवाल, अगर कल कोई ऐसी सिचुएशन फिर से आ गई, इमरजेंसी, पुअर पेशेंट, बेटर बट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, तो आप क्या करेंगे? मैम ऑनेस्टली मैं नहीं जानता, पर अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं वही करूँगा जो रूल्स और प्रोटोकॉल्स कहते हैं, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन मुझे कभी अलाउ ही नहीं करेगा किसी पेशेंट को इन्फीरियर ट्रीटमेंट देना सिर्फ फाइनेंशियल रीजंस के कारण। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं डॉक्टर बना ही इसलिए क्योंकि मुझे जिंदगियां बचानी थी। मैं आज भी हर एक पेशेंट को सिर्फ प्रॉफिट की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखता हूँ। रमेश कुमार सिर्फ एक 42 साल का एचटीएमआई का पेशेंट नहीं है, वो एक पिता है जिसे अपनी बेटी की शादी करानी है। आरती सिर्फ एक 8 साल की ल्यूकेमिया का पेशेंट नहीं है। आरती सिर्फ एक 8 साल की ल्यूकेमिया की पेशेंट नहीं है, वो एक स्कूल जाती बच्ची है जिसे डांस करने का शौक है, जिसकी आंखों में ढेरों सपने हैं। पर मैम अगर ये सिस्टम मुझसे फिर भी यही एक्सपेक्ट करता है कि मैं हर एक पेशेंट को सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की तरह देखूं, तो शायद मैं इस सिस्टम के लिए सही डॉक्टर नहीं हूँ, एंड यू कैन काउंट मी आउट। एनी मोर क्वेश्चंस? डॉक्टर अर्जुन, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, इमोशनल अटैचमेंट हर पेशेंट से रखोगे तो खुद सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सेल्फ केयर भी तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्योंकि अगर तुम कोलैप्स कर गए तो कितने पेशेंट्स का नुकसान होगा। हाँ एग्जैक्टली, मैंने भी यही तो बोला था इसे। आई थिंक इस केस के हमने इनफ पैशनेट पर्सपेक्टिव्स देख लिए। इस केस के मल्टीपल लेयर्स हैं, मेडिकल एथिक्स के चारों पिलर्स,
ऑटोनॉमी, नॉन बेनिफिशेंस, बेनिफिशेंस और जस्टिस, इधर सभी चैलेंज हुए हैं। डॉक्टर अर्जुन, आपने पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट दी, बेनिफिशेंस, उनको मरने से बचाया, नॉन बेनिफिशेंस, पर ऑटोनॉमी और जस्टिस, उसके एस्पेक्ट्स में कुछ गैप्स थे। इन्फॉर्म कंसेंट इनकम्प्लीट था, फाइनेंशियल काउंसलिंग भी प्रॉपर नहीं थी, और सिस्टम के रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट किए हैं उसका कोई मेंशन नहीं है। पर ये कमेटी सिर्फ जज नहीं करती, गाइड भी करती है। डॉक्टर सुरेश, आप कहते हैं प्रोटोकॉल्स प्रोटेक्ट अस, सही है, पर प्रोटोकॉल्स पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, सिर्फ हॉस्पिटल्स को नहीं। मिस्टर विक्रम, आप कहते हैं हेल्थ केयर बिजनेस है, सही है, पर हेल्थ केयर बिजनेस भी है और ह्यूमैनिटी भी, दोनों में बैलेंस ज़रूरी है। डॉक्टर राजेश, आपका एक्सपीरियंस इनवैल्यूएबल है, पर ट्रांसपेरेंसी भी तो ज़रूरी है। ये केस एक सिस्टमिक इश्यू हाईलाइट करता है, दैट इज हेल्थ केयर इनइक्वालिटी। डॉक्टर अर्जुन ने एक सिम्टम को ट्रीट करने की कोशिश की, पर डिजीज तो सिस्टम में है। कमिटी को अपना डिसीजन सुनाने में थोड़ा टाइम चाहिए। मस्त मीटिंग था यार, बढ़िया मीटिंग थी। तुझे भी थी क्या? हाँ, ऑब्वियसली आई लव मीटिंग्स। हाँ हाँ, थैंक यू। तो बता फिर क्या हुआ, जल्दी जल्दी बता दे, रिकैप कर। ठीक है। सो सबसे पहले अनन्या ने इंट्रोड्यूस करा, फिर उसने अर्जुन को देखा, फिर उसने ऑडियंस को। बस रुक भाई, तेज बोल यार, वापस नहीं सोना है सबको। हाँ ठीक है। चल मैंने नोट्स भी बनाई है, मैं उसी। अच्छा, तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले अनन्या ने इंट्रोड्यूस करा, फिर एडवोकेट ने इल्जाम लगाया, अर्जुन ने डिफेंड करा, सूरज ने वापस इल्जाम लगाया, जैनब ने ज्ञान दिया, विक्रम वाज विक्रमिंग अ लॉट। फिर काव्या ने बोला, एक सेकंड, काव्या ने बोला, वेट, काव्या क्यों बोल रही है, होगा कुछ। फिर अर्जुन ने क्वेश्चन करा, जैनब ने वापस ज्ञान दिया, एंड फाइनली अनन्या ने एडजर्न करा। बहुत लंबी थी ट्रू। पर कहना क्या चाह रही है ये तो बोल, अर्जुन को डाटा के नहीं, एंड रिजल्ट बता यार। रिजल्ट वो तो कल आएगा ना, टाइम लगता है भाई। अबे टाइम वेस्ट कर दिया फालतू का यार। क्या ये क्या है? ओ चल चलिए ना सर, थोड़ा हंस भी दीजिए, देखना कमेटी का फैसला ना आपके ही फेवर में आएगा। काव्या, काश मुझे भी खुद पर तुम जितना ही भरोसा होता। पता है जब आपने कमेटी में कहा था ना कि आप पेशेंट्स को स्टैटिस्टिक्स की नज़र से नहीं देखते, वो बात मेरे दिल को छू गई। पर काव्या, कहने वाली बात तो है, कमेटी में सबके सामने खड़ी होकर तुम मेरे लिए लड़ने लगी, तुम भी कमाल हो। वो तो मैं हूँ, पर आप तो जानते हैं ना, एक लड़की अपने पसंदीदा दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती है। काव्या, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। वैसे जोक्स अपार्ट डॉक्टर अर्जुन, कभी कभी लगता है ना कि एथिक्स वगैरह बस क्लासरूम में बैठ के पढ़ने की चीज़ है। हाँ, और रियल लाइफ में करने जाओ तो एथिक्स कमेटी में बुला लिया जाता है। आहा, देखो तो इनकी बड़ी बड़ी बातें। अभी कमेटी ने डिस्कस किया है, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी विथ वैलिड कंसर्न्स फ्रॉम ऑल साइड्स। सो डिसीजन इज, फर्स्ट, डॉक्टर अर्जुन को फॉर्मल वार्निंग इशू की जाती है फॉर प्रोटोकॉल वायलेशन एंड लैक ऑफ प्रॉपर फाइनेंशियल काउंसलिंग। सेकेंड, डॉक्टर अर्जुन को हेल्थ केयर पॉलिसी वर्कशॉप्स एंड फाइनेंशियल काउंसलिंग मीटिंग्स मैंडेटरी अटेंड करनी होगी। थर्ड, फ्यूचर में इमरजेंसी सिचुएशंस में भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मैंडेटरी है। पर कमेटी ये भी एक्नॉलेज करती है कि डॉक्टर अर्जुन का मेडिकल डिसीजन साउंड था, पेशेंट सेंटर था,
और मेडिकली डिफेंसिबल था, बट ओनली विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस। मिस्टर विक्रम, कमिटी रेकमेंड करती है कि हॉस्पिटल एक स्ट्रक्चर्ड इमरजेंसी चैरिटी फंड एस्टैब्लिश करे विद क्विक अप्रूवल प्रोसेस। ये केस एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी हम सबके लिए। हेल्थ केयर में हर रोज ऐसे डायलेमास आते रहते हैं, बट टुगेदर विल इम्प्रूव द सिस्टम। केस क्लोज्ड। चल ना अर्जुन, चल ना भाई, मनमोहन पे समोसे खा के आते हैं। अरे चल ना यार, बस एक वार्निंग ही तो मिली है। अरे यार रवि, तुझे ये सब एक मजाक लगता है क्या? तेरे लिए तो सब ये सब जैसे एक खेल है। तुझे पेशेंट की जिंदगी की जरा भी परवाह है? और मुझे तो पता ही नहीं चलता तू यहाँ तक पहुंचा कैसे। एक मिनट अर्जुन, तू कहना क्या चाहता है? बस तेरी तरह ये दिखावा नहीं करता तो क्या मुझे पेशेंट की परवाह नहीं? अरे यार रवि, मेरा वो मतलब नहीं है। अरे बचपन से जानता हूँ तुझे, ये जो तू फेम और कनेक्शन के लिए अच्छाई का जोक कर रहा है ना, बंद कर दे, एक्सेप्ट कर ले कि साले आखिर में मतलब तो तुझे भी पैसों से ही है। सिर्फ तुझे ही ऐसा क्यों लगता है रवि? तो क्यों, क्या हुआ था जब इमरजेंसी थी और आरती का ऑपरेशन करना था? तब तो तेरे जबान पे सिर्फ कंसर्ट ही था, तब तो तेरे हाथ पे ठंडे पड़ गए थे, हवा निकल गई थी। उस वक्त की बात ना कर तो ही अच्छा रहेगा रवि। तू उस वक्त नहीं था, इसलिए अभी ये बड़ी बड़ी बातें करना आसान है तेरे लिए। और मुझे पता है तुझे पेशेंट की कितनी परवाह है। अरे मैं अभी जानता हूँ ये तेरा सारा दोगलापन। जब बात सिर्फ पैसों पर थी तब तो पेशेंट का बेस्ट इंटरेस्ट सोचा, और जब बात खुद के करियर पर आई तब आरती को मरने के लिए छोड़ दिया। अबे साले, ये तो अच्छी बात है कि सिर्फ एक वार्निंग दे के छोड़ा। अगर बिल भरने का बोलते ना, तू भी रमेश जी के साथ ऑटो चलाता हुआ दिखता। अब तू लिमिट क्रॉस कर रहा है। अरे तो क्यों ना करूं लिमिट क्रॉस? आज रमेश है, कल महेश आएगा, फिर हरेश आएगा, सुरेश आएगा। सबके लिए अपना करियर थोड़ी दांव पर लगाएगा। मैं कुछ नहीं जानता रवि। अगर उस वक्त डिसीजन लेने में मैंने थोड़ी भी देरी की होती तो आज वो इंसान मर चुका होता। और मैंने जो भी किया है सही किया है। मेरे डिसीजन में टांग बदला तू। अरे क्यों ना अड़ाओ टांग? हाँ, तू अपने आप को समझता क्या है? अर्जुन मेहता बड़ा चला है गांधी बनने। अबे साले, एक बात याद रख ले, ये जो इतना बड़ा सिस्टम है ना, उसमें तू एक छोटा सा कीड़ा है, कीड़ा। ठीक है, तुझे जो करना है वो कर, पर मेरी भी एक बात है ना, हमेशा याद रखना, जब खुद की जेब फटी हो ना, तब दानवीर नहीं बनते। मजा ही आ गया, क्या मस्त लड़ाई थी। फाइनली कुछ मजेदार हुआ, पर बहुत जल्दी खत्म हो गई। बे यार, इसलिए मुझे स्टार प्लस देखने वाले ना पसंद नहीं आते हैं। ये पूरे दिन नागिन अनुपमा देख के ना तेरी बुद्धि भी एकदम वैसी हो गई है, कलेशी। कलेशी? तू मुझे कलेशी बोल रहा? कलेशी तो वो रवि निकला, बार जाके तंग करता वो अर्जुन को। हाँ, क्यों ही गया रवि उस अर्जुन के पास? नहीं जाना चाहिए था उसे खाने के लिए बुलाने। हट बेचारा। अगर यहाँ पे कोई बेचारा है ना, तो वो सिर्फ मेरे अर्जुन है, ठीक है? आज उसने ऑलमोस्ट अपनी नौकरी खो दी, और उसमें भी। अरे माइक में बोल यार। सॉरी, आज उसने ऑलमोस्ट अपनी नौकरी खो दी, और उसमें भी वो रवि जाके उसे ट्रिगर करेगा तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन आएगा। और सुन नरेटर तू ना एक बात ध्यान से समझ ले। सबके अपने जीवन का दुख और अपने कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस दूसरों से ज्यादा ही लगती है, ठीक है? और तुझे क्या लगता है सिर्फ अर्जुन के जीवन में प्रॉब्लम्स है? वेल दूसरे लोग भी हैं जिनके लाइफ में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स है। हाँ, पर ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, तू दूसरे लोगों को क्यों बीच में ला रहा है? अभी पता चलेगा तुम सबको।
विक्रम जी, मिसेस मल्होत्रा की रिपोर्ट्स आ गए हैं। सोचा रिपोर्ट्स के हिसाब से ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर? ये क्या कह रहे हैं आप? आप प्लीज शांत बैठिए। मिसेस मल्होत्रा आप बैठिए, आप चिंता मत करिए। और हमें डिटेक्ट करने में थोड़ी सी देरी हो गई है। कैंसर ऑलरेडी लिवर और लंग में फैल चुका है। तो मैम अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मिसेस मल्होत्रा, रियलिस्टिकली हमने कंफर्ट केयर का सोचा है, मगर उससे कितने एक्सटेंड हो, नो आइडिया। क्या और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है? सर्जरी, कीमोथेरेपी, कुछ नहीं हो सकता? रास्ते हैं मिसेस मल्होत्रा, मगर सर्जरी इसीलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी कैंसर बहुत फैल चुका है और कीमोथेरेपी अब बहुत वीक हो चुकी है, वो आपके लिए नहीं है। प्लीज मैम, लता मेरी जिंदगी है, आप ऐसे हार नहीं मान सकती। मैम, कई सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, पैसे का भी कोई इशू नहीं है मैम, प्लीज। लता तुम शांत रहो, मैं सब अरेंज कर दूँ। डॉक्टर नैना, मैं एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ। सेकंड, इनफैक्ट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी ओपिनियन की जरूरत हो। विक्रम प्लीज, तुम शांत रहो। डॉक्टर नैना, आप सच बताइए, अब मेरे पास कितना वक्त है? मिसेस मल्होत्रा, रफली 3 to 6 months। अगर नसीब हमारा साथ दे तो ज्यादा, वरना। डॉक्टर नैना, बस अब बहुत हो गया। ये 3-6 महीने ये क्या गिना रही है? आप होंगे इंडिया के बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट और मैं अपनी लता के इस वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से करवाऊंगा, मेरी इसी महंगी ट्रीटमेंट करवाऊंगा। विक्रम, सच से कितना भागोगे? सच? कैसा सच लता? कौन सा सच? वो सच जो ये रिपोर्ट्स बता रही है, वो सच जो डॉक्टर नैना बोल रहे हैं, और यही सच विक्रम कि हमारा साथ अब बस कुछ ही पल का है। डॉक्टर, ये जो वक्त बचा है उसमें मैं अस्पताल में नहीं, अपने घर पर रहना चाहती हूँ। ठीक है मिसेस मल्होत्रा, मैं अरेंजमेंट्स करवा दूँगी, आपको जैसा चाहिए वैसा आप मुझे बता देना। और हाँ, सच में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग का तो पता नहीं डॉक्टर, पर मेरी ज़िंदगी के ये जो आखिरी पल हैं उनको मैं अफसोस में बर्बाद करना नहीं चाहती। ऐसे वक्त में मैं टूटते हुए भी किसी तरह विक्रम को जोड़े रखना चाहती हूँ। नहीं यार, कैंसर सक्स मैन, रियली। हाँ यार, I never thought कि विक्रम was suffering, कि विक्रम भी कोई ऐसी सिचुएशन से सफर कर रहा हो। हाँ यार, इमेजिन कर कि तेरी वाइफ या फिर कोई एक ऐसा पर्सन तेरी लाइफ में जिसको तुम बहुत चेरिश करते हो, उसके साथ ये हो जाए। नहीं यार। और लता तो ये सब डिजर्व भी नहीं करती, वो कितनी काइंड और ग्रेटफुल है। याद है तुझे, वो आरती को चॉकलेट्स और बलून देने जाती थी। हाँ, That's really sweet of her। और तुझे पता है, जब कैंसर की न्यूज़ मिली उसके बाद भी उसका पहला एक्शन था कि वो विक्रम को सपोर्ट करने लगी। हाँ यार, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये तो बस एक नज़रिए का फर्क है। तू सोच, अगर तू एक बगीचे में जाएगी तो सबसे पहले तू कौन सा फूल तोड़ेगी? सबसे अच्छा वाला। एग्जैक्टली। अब इधर सोच। हाँ, but still, this is very unfair। Well, life is always unfair। पर अनफेयर चीज़ें सिर्फ यहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि अभी इसी समय एक दूसरी जगह भी कुछ ऐसा ही अनफेयर होने वाला है। अरे विजय सर, कैसे हो आप? जी अशोक जी, ठीक हो? सर, सीनियर डॉक्टर दिखाई नहीं दे रहे। वो सब अभी ब्रेक पे गए। परफेक्ट। देखिए सर, हमारी कंपनी ने एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए दिया है। सर, ये पैसे? अरे सर, इंसेंटिव।
आप जो मेहनत करने वाले हो उसका है। और देखिए सर, हमारी कंपनी ने एक नई एंटीबायोटिक बनाई है जिसका नाम है हिलॉक्सिन। हाँ सर, बहुत पावरफुल है और लेटेस्ट जनरेशन है। अब आपको बस इतना करना है, जब भी कोई सीनियर डॉक्टर इसे किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करे या आप किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करो, आपको रेकमेंड करना है हिलॉक्सिन। पर अशोक जी, हमारे पास तो जेनरिक एंटीबायोटिक्स है जिससे काम चल जाता है, और ये तो 5 गुना महंगी है। अरे सर, बिजनेस समझिए, ब्रांड वैल्यू है, कंपनी का भी बहुत नाम है, सीनियर डॉक्टर्स को भी कमीशन मिलता है सर, और हॉस्पिटल का तो बहुत प्रॉफिट होता है। मतलब सर, फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है। पर पेशेंट्स वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अरे सर, पेशेंट अफोर्ड कर लेंगे, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए जेनरिक है ना, बट जो अफोर्ड कर सकता है उनको बेस्ट देने में क्या हो रही है सर, और हिलॉक्सिन बेस्ट है। अच्छा, देखिए सर, ये इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है, आप नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा, और सर कुछ समय बाद आपकी भी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, फिर आपको भी कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको तो पता ही है, कॉर्पोरेट में ये सब करना ही पड़ता है, इसलिए मेरी बात मानिए, इसे रख लीजिए, और अगर कोई सवाल पूछे तो आपको इसके बेनिफिट्स बताना है। लीस्ट साइड इफेक्ट है, FDA अप्रूव है, और लेटेस्ट जनरेशन है सर। चलिए सर, एक बार देख लीजिएगा, मिलते हैं। अरे विजय, क्या हाल चाल? सब ठीक ना? जी सर, सब ठीक। ठीक है, कोई कामकाज हो तो बताना। जी सर। ये सब क्या चल रहा है? ये सब अलाउड भी है क्या? ये क्या घुसखोरी चल रही इधर? ये गलत नहीं क्या? अरे बहुत गलत काम कर रहे हैं यार ये लोग। भाई मेरे को तो शर्म आती है इससे। बस इतने पैसे में कौन बिक जाता है यार? What? I mean, वो कम पैसों में गिर गया, तुझे उससे प्रॉब्लम है? हाँ, ऑब्वियसली। क्या ऑब्वियसली? वो इतने पैसों को क्या ही कर लेगा? क्या उससे अपनी खुशी भी खरीद सकता है? नहीं, पैसों से कोई खुशी नहीं खरीद सकता है। पैसों से वो बहुत सारी खुशी खरीद सकते हैं लोग। तुम बताओ यार। देखा? अच्छा, मतलब पैसों से बहुत सारी खुशी खरीद सकते हैं, तो ठीक है, ये ले अपने पैसे और जा खरीद अपनी खुशी। ये क्या है, नकली नोट क्यों दे रही है? वो मैंने बैक स्टेज से उठाए और तू इसे फेंक रहा है। चल उठा, चल इसे। लता, तुम्हारी दवाइयों का टाइम हो गया। कितनी महंगी है ये दवाइयाँ, पता है? हाँ लता, पर तुम ये सब क्या सोच रही हो? पैसे का कोई इशू नहीं है हमें। हमें नहीं है, पर विक्रम, जब मैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाती हूँ, वहाँ बाहर कितने लोग बैठे होते हैं, बेबस और लाचार। वो सब भी कैंसर पेशेंट्स हैं, पर उनके पास पैसा नहीं है। हाँ लता, पता है मुझे, पर हॉस्पिटल में चैरिटी प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं, तुम्हें इन सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, पर कितने लोग इन स्कीम्स का एक्चुअली फ़ायदा ले पाते हैं? तुमने कभी जाकर देखा है वो प्रोसेस? कितनी पेपर वर्क है, कितनी वेटिंग है, और ये सब करते करते पेशेंट की हालत और ख़राब हो जाती है। लता, पर तुम कल की ही बात सुनो विक्रम। कल जब मैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए बैठी थी, वहाँ बाहर एक लेडी थी, उनके साथ उनकी बेटी थी, स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर। डॉक्टर ने अर्जेंटली सर्जरी रेकमेंड की थी, और सर्जरी का खर्चा तकरीबन 3 लाख तक बताया था। वो सिर्फ 1 लाख ही जमा कर पाए थे, और बाकी के पैसे जमा करने के लिए अपना घर तक बेचने की बात कर रही थी। हाँ लता, ये सैड है, पर हॉस्पिटल चैरिटी से तो नहीं चलता ना। हमें ऑपरेशंस रन करने हैं, स्टाफ को सैलरीज देनी है, और प्रॉफिट भी कमाना है। मैं जानती हूँ विक्रम कि ये बिजनेस है, पर
पर कभी कभी बिजनेस और इंसानियत में बैलेंस नहीं बन पाता। विक्रम, तुमने अपनी लाइफ के 30 साल इस हॉस्पिटल को बिल्ड करने में लगा दिए। स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, बेस्ट डॉक्टर्स, ये सब इनक्रेडिबल है, पर किसके लिए है ये सब? सिर्फ वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ वो लोग जो अमीर हैं। तो लता तुम ही कहो, क्या करूं मैं? फ्री में दे दूं सबको सब कुछ, क्या रह जाएगा हमारे पास? ये हॉस्पिटल है ना, बैंकरप्ट हो जाएगा। फ्री में नहीं विक्रम, फेयर में। डॉक्टर अर्जुन को देखो, उन्होंने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट दी बिना फाइनेंशियल क्लियरेंस के। डॉक्टर अर्जुन, तुम्हें कैसे मालूम उसके बारे में? हॉस्पिटल में डॉक्टर काव्या ने बताया था। पर रूल्स तोड़े हैं डॉक्टर अर्जुन ने। उसे इस मेरे बनाए हुए सिस्टम की कदर होनी चाहिए। सिस्टम या कंट्रोल? विक्रम, जब मेरा डायग्नोसिस हुआ था तो तुमने क्या किया? इमीडिएटली बेस्ट से बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट शुरू करवा दी। पर जब रमेश जी की बात थी तो उनके लिए अप्रूवल था, वेटिंग था, प्रोटोकॉल था। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। लता, ये बहुत ही अनफेयर कंपैरिजन है। अनफेयर ये है कि हेल्थ केयर एक इनइक्वालिटी है विक्रम। खुद को संभालो लता। विक्रम, मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम बिजनेस छोड़ दो। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम अपनी इंसानियत मत भूल जाओ। मेरे पास अब कुछ ही महीने हैं और मैं नहीं चाहती कि जब मैं जाऊँ तो ये अफसोस के साथ जाऊँ कि मेरा पति एक अच्छा बिजनेसमैन तो था और एक अच्छा इंसान नहीं। पर लता, तुम ऐसा क्यों कहती? मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता था। मुझे भी नहीं जाना विक्रम, पर ये चॉइस नहीं है मेरे पास। जो है वो है वक्त, और इस वक्त के गुजरने से पहले तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना होगा। एक समझदार आदमी ने एक बार कहा था, हर इंसान के पास 2 जिंदगियां होती हैं, 2, और जो दूसरी वाली होती है वो तब शुरू होती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसके पास जीने के लिए तो सिर्फ एक ही जीवन है। हाँ, और आई थिंक लता के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब जब उसे रियलाइज हो गया कि उसका समय सीमित है, तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो विक्रम में कोई एक अच्छा सा बदलाव ला सके। वो अपने टूटते हुए विक्रम को भी साथ जोड़ना चाहती है। पर हर सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, वैसे ही अगर कोई इंसान कुछ अच्छा ही करना चाह रहा होता है तो उसी तरफ कोई दूसरा कुछ बुराई भी करने वाला ही होता है। अरे सुरेश सर, अच्छा आप यहाँ मिल गए। अरे त्रिपाठी जी, बैठिए बैठिए। सर, वो जो कल नए कार्डियक स्टैंड भिजवाए थे, कैसे लगे आपको? देखे मैंने, मगर बहुत महंगे थे यार। अरे सर, क्वालिटी का प्राइस होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बनाया है सर। प्राइस तो होगा ना सर? मगर हमारे पास जेनरिक भी तो हैं, वो भी आपके स्टैंड से तो हमें 1/3 प्राइस पे मिल रहे हैं। अरे सर देखो, हर स्टैंड जितना आप प्रिस्क्राइब करोगे 15% आपका। एक स्टैंड 2 लाख रुपए का आता है। इसके हिसाब से 30,000 पर स्टैंड आपका। अगर महीने में 20 भी कार्डियक के केस आते हैं तो 20 × 30,000 6 लाख रुपीज़, वो भी आपके, सिर्फ कैश। नो क्वेश्चन सर, नो क्वेश्चन। मतलब बढ़िया तो है। अरे चाय, अरे ये सब कुछ तो ठीक है, मगर अपना पेशेंट्स अफोर्डेबिलिटी। अरे सर, पेशेंट अफोर्ड कर लेंगे, और जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए होता है ये प्रीमियम ऑप्शन, बाकी के लिए जेनरिक है ना। और आपको पता है इंश्योरेंस वाले पेशेंट भी होते हैं, उनको तो बेस्ट ही देना चाहिए। और आपको एक फन फैक्ट की बात बताऊं, हमारी कंपनी का इंश्योरेंस कंपनी से भी टाई है, मतलब सर स्मूथ प्रोसेसिंग, सर स्मूथ प्रोसेसिंग। चलिए ठीक है,
मगर ये बातें कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो प्योरली प्रोफेशनल एग्रीमेंट है, हॉस्पिटल के बेनिफिट के लिए, पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए, और सर आपके और मेरे बेनिफिट के लिए सर, आपके और मेरे बेनिफिट के लिए। इसलिए सर चलता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। डॉक्टर सुरेश, थैंक गॉड आप मुझे मिल गए। अरे मिसेस पटेल, आइए आइए। मेरी अपॉइंटमेंट कल की थी, बट मुझे आज अर्जेंट कंसल्टेशन चाहिए। हाँ जरूर जरूर, चलिए कैबिन में बात कर लेते। एक्चुअली मैं अभी मुंबई जाना चाहती हूँ, मेरे बेटे की बिजनेस मीटिंग। आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए, मैं अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा दूँगी। मगर आपका तो एग्जामिनेशन भी बाकी है। बस प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, कंसल्टेशन फीस ट्रांसफर कर दूँगी, ट्रिपल भी दे दूँगी, मगर अर्जेंट है। चलिए ठीक है, चलिए आपके लिए अब इतना तो कर ही सकते हैं। ये लीजिए आपका सर्टिफिकेट। और थैंक यू डॉक्टर सुरेश, आप तो सेवियर हैं। वाह सुरेश वाह, आप भी इस खेल में आ गए हैं। वही यार, खिलाड़ी तो बढ़ते ही जा रहे हैं इस खेल के। ये सिचुएशन को देख के मुझे बहुत अच्छी सी शायरी याद आ रही है। अच्छा, तू और शायरी? हाँ क्यों नहीं, चल सुना सुना। अर्ज किया है इशाद इशाद। चेहरे पे नूर और जुबान पे ईमानदारी का दावा। वाह 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 वाह। चेहरे पे नूर, जुबान पे ईमानदारी का दावा, दिल में चल रहे मौके का पूरा नजारा। लोग तुझे मिसाल कहते वफादारी की, पर डॉक्टर सुरेश तूने तो हमारे साथ कर धोखाधड़ी दी। बजाओ ताली यार। कोई नहीं कोई बात नहीं, होता है कभी कभी शायरी हो जाती है घटिया है। चलेगा चलेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जो सोच रही थी कि ये सुरेश और वो स्टंट वाले की बातें किसी ने सुन तो नहीं लोगी, सुन तो नहीं लेगी। वो तो होगी ही, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। पर अब बस ये देखना है कि क्या ये बात कान से लेके मुंह तक जाती है कि नहीं। अरे विजय, मुझे इमरजेंसी ट्रे के लिए एड्रेनालिन चाहिए। जी सर, एक मिनट। ये क्या है? सर वो पर्सनल है सर। विजय इतने पैसे? सब ठीक तो है ना? सर मैं नहीं जानता मैं क्या करूं। क्या हुआ विजय, तुम मुझे बता सकते हो? सर फार्मास्यूटिकल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव अशोक त्रिपाठी आया था। उन्होंने मुझे ये पैसे दिए, कहा कि इंसेंटिव है उनकी महंगी दवाइयाँ पुश करने के लिए। मैंने हाँ कह दी सर मैं डर गया था। वो बोले इंटर्नशिप रेफरेंस नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी। सर घर पे पैसों की ज़रूरत है, पापा रिटायर है, बहनों की शादी बाकी है सर। लेकिन विजय ये इलीगल है और अनएथिकल भी, तुम्हें पता है ना? इससे पेशेंट को नुकसान तो होता ही है और बेवजह महंगी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है। मैं जानता हूँ सर, पर सर पूरा सिस्टम ऐसे चलता है, सीनियर डॉक्टर्स भी ऐसा करते हैं। क्या तुमने देखा है? जी सर, मैं ये नहीं करना चाहता था, पर कल डॉक्टर सुरेश अशोक त्रिपाठी के साथ कार्डियक स्टेंट्स के कमीशन की बात कर रहे थे। मैंने सुना है सर। और तो मिसेस सुधा को बिना एग्जामिन किए प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। क्या? सर प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा, मुझे ये इंटर्नशिप चाहिए, पर ये पैसे लेके मुझे नींद नहीं आती। मैंने भी हिपोक्रेट का ओथ लिया है कि पेशेंट्स वेलफेयर फर्स्ट, पर सर ये पूरा ऑपोजिट है। विजय
अभी भी तुम्हारा कंसर्न जिंदा है। हम ऐसे ही पेशेंट का नुकसान नहीं होने दे सकते, हमें कुछ करना पड़ेगा। सर मेरे पास अशोक त्रिपाठी की चैट्स है, फोन में प्राइस लिस्ट है, डॉक्टर लिस्ट है जिन्हें किकबैक्स मिलते हैं। गुड, एक काम करो, उन सबको प्रिंट करा लो और ये पैसे रिटर्न कर दो। जी सर, थैंक यू सर। आप नहीं होते तो मैं गलत रास्ते पे चला जाता सर। सर आ जाओ आ जाओ। सर आपको कुछ दिखाना है। अर्जुन, विजय, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? विजय, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। ये क्या है? सर A few moments later. ये तो सीरियस मेडिकल मिसकंडक्ट है। तुम दोनों तैयार हो ये नतीजे को फेस करने के लिए? क्योंकि डॉक्टर सुरेश बहुत पावरफुल है, उनके पास कनेक्शंस है। सर कल मुझसे पूछा गया था ना कि अगर सिस्टम गलत हो तो क्या करोगे। अब मेरा बस एक ही जवाब है, सही करो चाहे कोई भी नतीजा हो। सर मैं इनिशियली डर गया था इसलिए मैंने हाँ कह दी, पर मुझे अब अपने प्रोफेशन की इज्जत करनी है। तुम जैसे यंग डॉक्टर से मुझे होप मिलती है। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली मिस्टर विजय और डॉक्टर रॉय के पास लेके जाऊंगा। एथिक्स कमेटी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। जी सर। वाह ड्यूड, मुझे नहीं लगा था कि विजय में इतना गट्स हो गए कि वो सुरेश की कंप्लेन कर देगा, है ना? पर यार मैं भी तो देखूं क्या क्या गपले करे हैं इस सुरेश ने। ओह भाई, वाह सुरेश वाह, मुझे तो तू लखपति लगता था यार, पर तू तो करोड़पति निकला रे। और उसमें लिखा था कि 15, 20 और 50 टका, भला 50% कमीशन भी कहीं मिलता है, वो भी मेडिकल की फील्ड में। यार ये तो है जबरदस्त बात। अब तो मुझे लग रहा है कि एक और एथिक्स कमेटी मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी। हाँ मुझे भी जरूरत तो लग ही रही है, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे रोल्स रिवर्स्ड हो जाएंगे, है ना? वेल जो भी है, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। तो एथिक्स कमेटी आ जाइए वापस, और क्योंकि चालू करो, ड्रामा शुरू होने वाला है। ये इमरजेंसी मीटिंग इस वक्त इसलिए बुलाई गई है क्योंकि सीरियस एलिगेशन सरफेस हुए हैं। डॉक्टर राजेश, आप केस प्रेजेंट कीजिए। थैंक यू मैम, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ। डॉक्टर सुरेश, आपका नाम प्रोमिनेंटली है, क्या कहना है? मैम ये सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी है। नहीं सर, मैं खुद विटनेस हूँ। मैंने कल आपको कैफेटेरिया में अशोक जी से डील करते देखा, और तो मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग? कैसे रिकॉर्डिंग? प्ले करिए, कैसी रिकॉर्डिंग है? अरे सर देखो, हर स्टेंट जितना आप प्रिस्क्राइब करोगे 15% आपका। एक स्टेंट 2 लाख रुपए का होता है, इसके हिसाब से 30,000 पर स्टेंट। और अगर महीने में फीस भी कार्डियक के केस आते हैं तो कुछ रफली 6 लाख होते हैं सर। एक्स्ट्रा इनकम सिर्फ कैश, नो क्वेश्चन सर, नो क्वेश्चन। सुरेश, तुमने इस मून फार्मा जैसी छोटी कंपनी के साथ मिलकर मेरे
मेरे अस्पताल का इस्तेमाल किया। किसके लिए? करप्शन के लिए, धोखाधड़ी के लिए। भरोसा किया था मैंने तुम पर और तुम नमक हलाल निकले। सर ये इंडस्ट्री में सब करते हैं। मैं पहला नहीं हूँ जो ये सब कुछ कर रहा है। पर सर आप कमेटी में मौजूद थे ना जब डॉक्टर अर्जुन को क्वेश्चन किया जा रहा था। हाँ तो आप प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे थे, क्या एथिक्स की बात कर रहे थे? और खुद हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है डॉक्टर सुरेश। आपने एक यंग आइडियलिस्टिक डॉक्टर को टारगेट किया जबकि आप खुद पेशेंट्स का फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। और मैम एक और मैटर है, मिसेस सुधा को भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही दवाई दे दी गई और ये डॉक्टर विजय ने देखा भी है। तो ये तो मेडिकल नेग्लिजेंस ही है। डॉक्टर सुरेश क्या ये सब सच है? मैम वो मेरी रेगुलर पेशेंट है। मैं उनका सब हिस्ट्री जानता हूँ और मेरे को सब पता है उनके बारे में। डॉक्यूमेंटेशन, एग्जामिनेशन नोट कुछ भी नहीं एक्सपायर है। लीगली प्रिस्क्रिप्शन ही फ्रॉड है। डॉक्टर सुरेश, ना समझ आप हो या हमें समझते हो? तो ये प्राइवेट केबिन में बुला कर तुम ये लोगों को फेक प्रिस्क्रिप्शन दे रहे थे। मिस सुधा तुम्हारे प्राइवेट केबिन में क्यों आई थी? प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन लेने। आज मैं इस कमेटी को कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इस हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते इन सारी घटनाओं के लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं डॉक्टर अर्जुन को रोकता रहा, टोकता रहा, उन पर सवाल उठाता रहा और इस सुरेश जैसों को फ्री हैंड दिया ताकि ये अपनी मनमर्जियां चलाते रहे, ताकि जो चाहे वो करते रहे। मेरी वाइफ लता अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और पिछले कुछ दिनों में उसने मुझे सीख दी कि इस धन दौलत से सब नहीं पाया जा सकता। उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि इस दौलत की दौड़ में मैं अपनी इंसानियत कहीं पीछे भूल गया। आज मैं डॉक्टर अर्जुन से सामाजिक तौर पर माफ़ी मांगता हूँ और डॉक्टर अर्जुन, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हूँ जिसने आप जैसे नेक डॉक्टर को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, आप पर सवाल उठाया। आज इस कमेटी को मैं 3 अहम सुझाव देता हूँ। डॉक्टर सुरेश will be granted permanent expulsion from this hospital until further notice. Moon Pharma will be permanently banned from hospital premises until the investigation is completed. And complete pharma audit. आज के बाद से जो भी ट्रांजैक्शन होंगे इस अस्पताल में वो इस कमेटी से होकर गुजरेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेटी डॉक्टर सुरेश के इमीडिएट सस्पेंशन को अप्रूव करती है। पुलिस कंप्लेंट भी फाइल होगी। डॉक्टर विजय, आपकी ब्रेवरी कमेंडेबल थी। डॉक्टर अर्जुन, आप पे जो एलिगेशंस लगे थे वो हम वापस लेते हैं। इंस्टेड आपको स्पेशल रिकॉग्निशन दिया जाएगा फॉर एक्सपोजिंग करप्शन एंड फाइटिंग फॉर पेशेंट्स वेलफेयर। मीटिंग एडजर्न। वाओ विक्रम, वाओ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। फाइनली इसके मुंह से कुछ ऐसा निकला जो मुझे सुनने में भी अच्छा लगा। कितना बदल गया ना ये, है ना यार। मैंने रातों रात देश की सरकार बदलते हुए देखी है, नीट का कट ऑफ बदलते हुए देखा है, उसके रिप्लाई बदलते हुए देखे हैं, पर आदमी को इतना बदलते हुए तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। चलो कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। पर सुरेश के लिए तो यही अच्छा होगा कि वो एक अच्छा सा लॉयर ढूंढ ले, क्योंकि सुरेश नहीं मिलने वाली तुझे अब बेल। अब तो तुझे जाना पड़ेगा जेल। ओह यार, मजा आ गया। मस्त कंप्लीट किया। पर अपार्ट फ्रॉम ऑल सीरियसनेस, विजय और वो लोग रेडी है ना? हाँ, आई थिंक सो। चल 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 निकलते। सिस्टम चेंज किया या मेरा नजरिया, समझ
मेरा फर्ज था, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल पाया, ये मेरी खुश नसीबी है। वैसे रमेश जी के केस से लेकर ये करप्शन की एक्सपोज है, आप लगातार सिस्टम से लड़ते रहे। इम्प्रेसिव। तुम भी कम नहीं हो मैडम, कमेटी में खड़ी होकर सबके सामने मेरे लिए लड़ रही थी। एविडेंस सपोर्ट्स डॉक्टर अर्जुन। सीरियस थी अर्जुन। एक्चुअली काव्या, इन सब में तुम्हारा सपोर्ट भी बहुत जरूरी था। आपको पता है, जब आपको नोटिस मिला था ना, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था आपको अपना करियर ही खत्म, पर आप डरे नहीं। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि आप मेरे लिए एक कॉलीग से बढ़कर एक्चुअली काव्या, मैं भी तुम्हें एक कॉलीग से बढ़कर ही मानता हूँ। तुम्हारा यूं सिस्टम में मेरे लिए खड़ा होना, हर बार मेरे लिए लड़ना और कमेटी में खड़ी होकर मेरे लिए लड़ना, ये सब मेरे लिए मैं नहीं बता सकता तुम्हें। अरे वाह, रोमांच हो रहा है यहाँ तो। पहले करप्शन एक्सपोज किया, अब लव लाइफ एक्सपोज हो रही है। रवि, देख तूने ये जो किया है ना, वो एकदम लेजेंडरी है। पूरे हॉस्पिटल में बात फैल गई है। और तो और जूनियर तो तुझे हीरो मानते हैं, हीरो। पर ऐसा किया क्या है मैंने? देख भाई, पार्टी तो देनी पड़ेगी, और तो और तुम दोनों को ऑफिशियली कपल भी तो डिक्लेयर करना है। डॉक्टर साहब, आपने हमें नया जीवन दान दिया है, आपका दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ। देखो रमेश जी, आप बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खुश रहिए, यही सबसे बड़ा शुक्रिया होगा। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, दवाइयाँ टाइम पर लेते रहना, ठीक है? और स्ट्रेस तो बिल्कुल ही मत लेना। डॉक्टर साहब, आपने हमारा जो बिल कवर किया उसके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे आपके। आपने एक गरीब परिवार को इज्जत से जीने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू रमेश जी। और डॉक्टर अर्जुन, तुमने जो किया वो मेडिकल स्कूल में एक मिसाल बनेगा, हाउ एथिक्स शुड बी प्रैक्टिस। डॉक्टर साहब, आखिरी बात, जब हम स्ट्रेचर पर था ना, मौत से जूझ रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, आत्मा अटक गई थी। अब मौत से नहीं डर रहा था, बल्कि अपन तो अपनी प्यारी बीबी को अधूरा छोड़ने से डर रहे थे। आपने हमें उस डर से आजाद किया, ये करे से मैं हो गया। तो अब ये कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया तुमने? कभी तो नॉर्मल हो जाया कर यार। नहीं रहूंगा नॉर्मल। जा क्या कर लेगी? और एक बात बता मुझे, ये मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मेरे सामने कपल क्यों आ जाते हैं यार? खाने जाता हूँ तो कपल आ जाते हैं, घूमने जाता हूँ तो कपल आ जाते हैं, लाइब्रेरी जाता हूँ तो कपल आ जाते हैं। और अब तो हद ही हो गई यार, अब तो इस सीट में भी आ गए यार। इससे अच्छा तो मैं अंदर ही ठीक हूँ। नहीं यार, नहीं ये सब देख नहीं सकता, मेरी तो आंखें जल गई पूरी। तुझे देख
के लगता है तेरी आंखें नहीं कुछ और ही जल रही है। और ऐसा क्या लगा के रखा है और तू जो भी बोल, ठीक है, वो लोग सीरियसली बहुत क्यूट कपल है। हाँ हाँ जो भी है ठीक है, पर एक बात बता, ये रवि ना बार बार बीच में आ जाता है ना? है ना, वो सारा जलता है इससे, मैं तुझे बता रही हूँ। और अगर ऐसा ही करता रहेगा ना तो तू देख लेना अकेला ही मरेगा, पक्का है ये तो। हाँ ये तो है, पर एक बात अच्छी हुई, एटलीस्ट रमेश अब हेल्दी है और उसका डिस्चार्ज भी हो गया है ना? हाँ ये तो है। पर उससे भी एक अच्छी बात ये है कि रमेश जब इस हॉस्पिटल से अब निकल रहा है तो वो ज़्यादा हेल्दी होके निकल रहा है, ज़्यादा गरीब होके नहीं। पर अगर ये हैप्पी एंडिंग है तो लाइफ अभी भी बंद क्यों नहीं हुई? लता उठो, तुम जो चाहती थी वो हो गया। तुम्हें मालूम है नया फंड शुरू किया है मैंने, लता हेल्थ केयर जस्टिस फंड। तुम्हें मालूम है पहले ही हफ्ते में 12 पेशेंट्स को मदद मिली है हमारी वजह से। मुझे तो बहुत गर्व है, आखिर तुम वो विक्रम बनती है जिसे 15 साल पहले मैंने पसंद किया। विक्रम, अब मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि मेरे जाने के बाद भी तुम कुछ गलत नहीं होने दोगे। लता, अभी तो तुमने मुझे एक जिंदगी का नया नजरिया दिया था और उस नजरिए के साथ हमें जिंदगी का नया पड़ाव शुरू करना था। और तुम हो कि मुझे छोड़कर जाने की बात करती हो लता। लता डॉक्टर नैना कहाँ है? एक मिनट, डॉक्टर नैना को बुला। देखिए मेरी लता को क्या लता, क्या हो गया मेरी लता? तो बचाइए ना मेरी लता, खड़ी क्या है आप? बचाइए लता, ठीक हो जाएगा, बचाइए उसे। अपनी मर्जी से डीएनआर फॉर्म साइन किया, दिस मींस नॉट रिसब्सिट्यूट। इसका मतलब हम उनकी लाइफ प्रोवाइड नहीं कर सकते। नो लाइफ सपोर्ट, डीएनआर फॉर्म साइन हो गया, नॉट रिसब्सिट्यूट। तुम्हें इंसानियों की कीमत मेरी लता से ज्यादा लगती है। तुम्हें लगता है कि ये पागल मेरी लता के सामने बोल सकते हैं? लता ये कहो ना, तुम्हें बचा लेना। याद रखना, इंसान अपने काम से जिंदा रहता है और तुम वादा करो कि मेरे जाने के बाद भी तुम इससे जिंदा रहो। अरे बचाइएगा इसे, बचाइए। अरे मेरे पास लता के अलावा कोई नहीं है, मेरा सारा परिवार वही है, बचाइए उसे।
लता 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 उठो लता, ये सदा ठीक नहीं लता। लता बदल गया, मैं तुम्हारे लता जो कहा वो किया लता। लता ऐसा मत करो लता लता लता